Okay, so we'll continue with more questions on electrostatics. First in the list today is question number 4. A thin conducting ring of radius r is given a charge of plus capital Q. The electric field at the center O of the ring due to the charge on the part AKB of the ring is E. The electric field at the center due to the charge on part ACDB of the ring is. तो मैं वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या बोला है. थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन चार्ज प्लस q. तो इस पूरे रिंग पे चार्ज प्लस q है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द रिंग ड्यू टू चार्ज ऑन द पार्ट ए के बी. इस पार्ट पे जितना चार्ज है उसकी वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई. राइट. तो जो रिमेनिंग पार्ट है ए सी डी बी, what will be the electric field due to that remaining part at the center? So the thing is, electric field due to this part is E, and since the charge is positive, electric field always goes away. As you know, positive charge से away होता है. So this is the direction of electric field E due to the charge on AKB. Right? Now we also know that total electric field at the center is zero. Since total electric field at the center is zero, तो जो remaining charge है on the part A, C, D, B, इस पार्ट की वजह से इस पार्ट पे जो चार्ज है ए सी डी बी पे जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर शुड हैव अगेन वैल्यू ई, बट इट शुड बी अलोंग ओके. क्यों? क्योंकि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जीरो होने के लिए इट इज रिक्वायर्ड दैट द रिमेनिंग part should have equal and opposite electric field. तो कैसा है कि sometimes you may think कि 4 क्वाड्रेंट है और एक क्वाड्रेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो बचे हुए का 3E होगा. This is what you may think and you may write option B, which is not correct. क्योंकि सेंटर पे अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए इक्वल और अपोजिट चाहिए. क्योंकि ए के बी पार्ट का ई है अवे मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ के ओ. तो उसको कैंसिल करने के लिए जो रिमेनिंग पार्ट है ए सी डी बी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ई इन द डायरेक्शन ऑफ ओ के. दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. राइट. Good. So what I want you to do is after this class when you go home, if you want you can go through this recorded lecture again and make a note of what I said. Question number 6. 4 point charges minus q minus small q, 2 times small q and 2 times capital Q are placed at each corner of the square. The relation between capital Q and small q for which the potential at the center of square is zero is. So you have been given a square and in this on the corners of this square you have charges minus q, then here you have minus small q, then you have 2q, then you have 2 times of capital Q, and at the center the potential should be 0. So what should be the value of capital Q
for the potential at the center to be 0. So first of all, you need to know what is the formula for potential. Potential is K Q by R, R not R square. और आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक वर्टेक्स का, हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर ये A है, ये A है, तो डायगोनल इज √2a, उसका हाफ a बाय √2, a बाय √2. टोटल पोटेंशियल को 0 बोला है, तो आई से 1 2 3 and 4. So total potential is potential due to 1 plus 2 plus 3 plus 4, and this is equal to 0. And you know कि potential at 1 contains k and distance is same for all the cases, इसलिए अंदर हम सिर्फ लिखेंगे charges minus q plus 2q plus 2 small q equal to 0. ये तो वैसे भी वहां जाके 0 होने ही वाला है. मतलब here you have capital Q plus small q equal to 0. मतलब capital Q equal to minus q, option number A. This is how you were supposed to solve this question, और ये बहुत easy था, provided you know basic things like center से vertex का distance of a square is same for all these vertices. For electric charges, plus q minus q and minus q are placed at corners of a square of side 2l. The electric potential at point A midway between the two charges plus q is, so you are supposed to solve this and tell me the answer. So you need to pay attention here now. 1 2 3 4 L L, ये 2L है, तो this will be 2L square, मतलब 4L square plus L square, 5 times of L square, उसका रूट मतलब √5L, ये भी √5L. I am going to tell you a trick, क्योंकि ये क्वेश्चन ओरल था विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर. ओरल क्वेश्चन था ये. कैसे? टोटल पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल ड्यू टू 1 plus 2 plus 3 plus 4, राइट? सब में k आएगा ही कांस्टेंट, राइट? गुड. देन इफ यू नोटिस यहाँ पे q बाय l, राइट, और जो ये 2 दिया हुआ है उसका डिस्टेंस, उसका चार्ज है माइनस q, डिस्टेंस है √5l. 3 के लिए भी q बाय √5l और 4 के लिए q बाय l विद अ प्लस साइन. तो इसका मतलब k q बाय l बाहर आने ही वाला है, राइट? 1/L 2 बार है, तो 2/L. √5 मतलब l तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो I'll just keep it as 2. √5 डिनोमिनेटर में 2 बार है, तो -2/√5. तो when I can take 2 कॉमन, राइट? तो k मतलब 1/4 pi epsilon 0, 2 कॉमन 2q/l, 1 minus 1/√5. ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी. हाउ टू डू इट ओरली? ओरली तब होगा जब कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आपके क्लियर होंगे. k q बाय डिस्टेंस इतना ही पता होना था. ए पॉइंट का डिस्टेंस 1 और 4 से इक्वल है, राइट? और दोनों पे चार्जेस भी इक्वल है, मतलब k q बाय l 2 बार आएगा, राइट? 2 और 3 मतलब माइनस q से डिस्टेंस √5/l है और चार्जेस भी इक्वल है, मतलब -2kq बाय √5l 2 बार आएगा. तो 2q/l 2 बार आया, माइनस 2kq बाय √5l 2 बार आया, तो 2kq/l कॉमन, 1 माइनस माइनस
मैं बार बार माइनस माइनस क्यों बोल रहा हूँ, बीच में माइनस साइन आएगा, कौन से ऑप्शन में माइनस साइन है, अब तो खत्म, क्या सॉल्व करना था इसमें। अगर चारों चार्जेस पॉजिटिव होते तो बीच में माइनस नहीं आता, तो फिर ऑप्शन नंबर सी आता, करेक्ट, राइट। So this is how you solve this question orally. Look, always remember formulas. KQ by distance. 2 का डिस्टेंस L, 2 पे चार्ज Q, तो 2KQ by L minus 2KQ by root 5 L. 2KQ by L common 1 minus 1 by root 5 खत्म, done orally. Question number 8. As I told you, those who came little late, for them, जो क्वेश्चन 2013-14 से पहले वाले हैं, that time NEET did not exist, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग अलग स्टेट का अलग अलग तरीके से होता था, and there are some questions which appeared in Kerala PMT, some appeared in AIMS, right? So this kind of questions are little higher level, you need not to worry about this kind of questions. So this is one of those questions. 3 concentric spherical shells have radii A, B and C, where A is less than B is less than C. तो एक concentric मतलब 3 concentric shell है जिसका पहले का रेडियस A है, then you have another जिसका रेडियस B है, then you have another and the radius of this is C, right? They have surface charge densities as sigma, then minus sigma, then again sigma. If VA, VB and VC denote the potentials of 3 shells, then for this given condition, that is C equal to A plus B, what is the relation between potentials VA, VB and VC? तो first of all you need to know कि अगर मुझे VA निकालना है, if I want to find out potential at A, total potential at A will be due to surface density sigma on the innermost sphere, फिर potential due to the next sphere, then due to the last sphere. So total potential at A will be potential at distance A, of course, plus distance B plus distance C. अब ये होता है यहाँ पे confusion, ठीक है, तो पहले तो कर लेंगे हम लोग. So how do you find this? K charge on A sphere by distance. आपको मैंने कल बताया था लास्ट सेशन में, एक स्पीयर की सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय रेडियस, रेडियस इज ए, प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल यहाँ पे कैसे करोगे, के क्यू बी बाय व्हाट एंड प्लस पोटेंशियल के क्यू सी बाय व्हाट. दिस इज इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू फाइंड आउट वी ए, वो बाद में देखेंगे हम लोग, बाय बी एंड बाय सी. ओके, ठीक है, तो फॉर दिस इज ओके, then you have to substitute values. अब how do you substitute values? देखो ऐसा है, you know sigma is charge upon area, so charge is sigma into area, है ना, राइट. तो ये आ गया आपका k कॉमन सब में से. QA will be sigma into area of the innermost shell, 4 pi a square by a. दूसरे पे माइनस सिग्मा 4 pi b square by b
plus sigma 4 pi c square by c. a b b c c कैंसिल हो गया ये, तो आपको मिला ये k 4 pi सिग्मा कॉमन a माइनस b प्लस c, राइट। तो k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई सिग्मा a माइनस b प्लस c, 4 पाई कैंसिल सिग्मा a माइनस b प्लस c अपॉन एप्सिलॉन 0, दिस इज va। हम वो c इक्वल टू a प्लस b की कंडीशन अभी तक सब्स्टिट्यूट नहीं किए, देखेंगे करने हैं कि नहीं। Now when you find out VB, then there is a problem. So can you tell me what is the formula for VB? I don't know I have done it or not. Anyways, नहीं भी किया होगा तो कर लेंगे। Can you tell me how to find out VB? K QA है ना plus K QB plus K QC divide by what and what? by B B by C. Why? For shell B, the human is inner. Yes. That's the radius of B will be. Yes. Yes. ये important था। जब B पे पोटेंशियल निकालते हो, B स्पीयर का पोटेंशियल अगर आपको निकालना है, A इनर है, तो इनर का डिस्टेंस नहीं लेते, जिस पॉइंट पे निकालना है उसका डिस्टेंस लेते हैं, है ना। गुड, तो यू हैव टू टेक B and B. So here you will be again doing the same thing, K common, QA as you wrote sigma 4 pi A square by B minus sigma 4 pi B square by B plus sigma 4 pi C square by C, right? ये और ये गया, ये और ये भी गया, K 4 pi sigma A square by B minus B plus C। गुड, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम बाद में। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई सिग्मा A स्क्वायर बाय B माइनस B प्लस C, कैंसल कैंसल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर बाय B माइनस B प्लस C। व्हाट अबाउट पोटेंशियल VC? VC कैसे करेंगे? K तो कॉमन आएगा ही, QA by something plus QB by something plus QC by something, C C C। गुड, एक्सीलेंट। तो K अभी आपको ऑलरेडी पता है कि 4 पाई सिग्मा सब में आने ही वाला है। गुड, तो पहले से रख दिया। A स्क्वायर बाय C माइनस माइनस, क्योंकि B पे नेगेटिव डेंसिटी था, माइनस B स्क्वायर बाय C। ओके, राइट। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस यू विल गेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन C प्लस C, करेक्ट। व्हाट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर? A माइनस B इंटू A प्लस B अपॉन C, बट C क्या था? A प्लस B प्लस C, यहाँ पे ये और ये कैंसल हो गया, तो क्या आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 A माइनस B प्लस C, राइट। बट ये तो VA था क्या VA? मतलब VA और VC इक्वल है, VB नहीं है, ऑप्शन नंबर A, राइट। गुड, तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ओरल जोक। कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, हो गया सॉल्व। कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर is given a charge q, the electric potential and electric field, पहले potential पूछा है बाद में field पूछा है, at the center of sphere r, electric field जीरो होगा, potential जीरो नहीं होगा, both cannot be zero, electric field cannot be, it should be zero inside, तो नहीं, पहले potential पूछा है, potential cannot be zero, electric field is zero, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमको। The electric potential at a point is given by V equal to minus x square y minus xz cube plus 4. Electric field E at that point is, you remember this, E bar minus del operator into potential. फिर आपको मैंने बताया था कि ये del operator होता है ड्याबा माइनस तो बाहर आएगा, ड्याबा x i कैप, और बाहर v भी है तो v को भी अंदर ले रहा हूं मैं, तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे सब with respect to x and y and z of v, so you have to take this partial derivatives and that's it। तो आपके लिए काम यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको v का डेरिवेटिव पहले तो लेना है with respect to x, फिर with respect to y and then with respect to z, so what you can do is dava v by dava x, so derivative with respect to x of v minus x square y minus xz cube, actually if you want to have a shortcut I'll tell you, do not take derivative with respect to x first, take with respect to y और z, क्यों? क्योंकि दो टर्म में x है, तो दो टर्म में x है मतलब उन दोनों का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, राइट? क्यों? x है तो उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा ना, y और z एक एक टर्म में ही है, तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू y लोगे तो एक ही टर्म का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, दो का जीरो होने वाला है, तो इट इज प्रीटी सिंपल। तो जब आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब डेफिनेटली ये और ये डेरिवेटिव इसका जीरो होगा, मतलब यू विल हैव ओनली माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर ही आने वाला है, isn't it? माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? जे कैप, फिर यहाँ पे भी जे कैप, और बाहर एक माइनस है, मतलब माइनस माइनस प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर जे कैप, ऐसा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ऑप्शन नंबर ए, इजंट इट? हाँ तो ये आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए, आई डोंट नो, इट शुड कम, देख लेते हैं आंसर की में बोला है क्या, ए ऑप्शन बोला है, ए ऑप्शन, योर जॉब इज वेरी सिंपल। तो अदर वे अराउंड, हाउ डू यू सेव टाइम? लुक एट ऑप्शंस आल्सो। पहला ट्रिक मैंने आपको बता दिया कि तीन में से दो टर्म में x है तो दो टर्म सरवाइव करेगा, जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लोगे दो टर्म सरवाइव करेगा, मतलब ये और ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले टर्म आई कैप के साथ दो दो फैक्टर्स होने चाहिए अंदर, राइट? दूसरा ये भी है कि अगर ऑप्शन में आई कैप और जे कैप या के कैप किसी भी एक के साथ, चार ऑप्शन है, चारों में कहीं भी अगर सेम है, मतलब के कैप के साथ सेम फैक्टर है या फिर जे कैप के साथ सेम फैक्टर है या फिर आई कैप के साथ सेम फैक्टर है, फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक भी नहीं है, पर हो सकता है ऐसा, दे कैन गिव यू लाइक दिस, ओके, राइट? मतलब अभी ए और डी में पहला पहला सेम, मतलब डू नॉट सॉल्व फॉर आई कैप, क्योंकि अगर करोगे तो वापस दूसरा करना ही पड़ेगा फिर, राइट? टाइम सेव करने के लिए पहले क्वेश्चन देख लो, व्हेन यू लुक एट क्वेश्चन, ठीक है, फिर फटाफट से
with respect to y या with respect to z ले लो. If you take with respect to y derivative, you will be left with minus x square, और एक माइनस ऑलरेडी बाहर था तो माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप आना चाहिए, प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप एक ही जगह पे है. विद रिस्पेक्ट टू z लोगे तो फिर माइनस 3 xz स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z जीरो होगा. माइनस एक्स आउटसाइड जेड क्यूब का 3z स्क्वायर माइनस 3xz स्क्वायर, और माइनस मतलब प्लस, तो ये प्लस 3xz स्क्वायर के कैप भी है. तो सिंपलेस्ट क्या था? सिंपलेस्ट था कि पहले आप जो जैसे x दो टर्म में है, नेवर गो फॉर x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. दूसरा z का क्यूब है, डू नॉट गो फॉर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z. y का पावर एक है तो सबसे इजी डेरिवेटिव उसका होगा. तो हो गया सॉल्व, ऑप्शन नंबर ए. Next question. Electric potential at a point in free space due to charge q coulomb is q into 10 power 11 volts. Electric field at that point is. The thing is, you just need to know formulas here. Electric potential मतलब V, you know that this is kq by r. This is given to you as q into 10 power 11. Cancel. मतलब k by r 10 power 11 है. Instead of finding r, you can also find k by r. क्योंकि आप फिर k की वैल्यू 9 into 10 power 9 डालोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे, तो दैट इज ऑल्सो वन वे. यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल सकती है. You can find out r from here. 9 into 10 power 9 this, तो आपको मिल जाएगा. तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में के क्यू बाय आर स्क्वायर करके कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू हैव मोर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज के क्यू बाय आर स्क्वायर. ऐसा ही आता है. गुड. मैं ऐसा करता हूं, व्हाट आई विल डू इज, मैं के स्क्वायर कर सकते हैं ना, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे के से डिवाइड कर लेता हूं तो इजी हो जाता है. क्यू बिकॉज के बाय आर स्क्वायर क्यू बाय के बाय आर स्क्वायर 10 पर 11 का स्क्वायर 22. क्यू तो है ही, के क्या है 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0, ये ऊपर जाएगा तो 4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 10 पावर 22. ऑप्शन नंबर सी. तो ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि अभी r फाइंड करेंगे फिर r के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी लिटिल लेंथी. थोड़े 3-4 स्टेप्स बढ़ जाएंगे आपके. तो यू कैन सॉल्व दिस वे आल्सो. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V equal to 6x minus 8xy square minus 8y plus 6yz minus 4z square. Electric force acting on 2 coulomb point charge placed at the origin will be. All right, so method 1. E is minus del operator of V. फिर आपको ऑलरेडी पता है कि ये जब आप करोगे सॉल्व तो ये आएगा माइनस डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, ये आपको ऑलरेडी सब पता है, ऑलरेडी दिस यू नो. तो एक एक करके आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे. अगर आप खुद को फास्ट नहीं करोगे तो ये सब करना पड़ेगा. When you take derivative with respect to x, पहले टर्म का 6, दूसरे टर्म का -8y स्क्वायर, राइट. गुड. विथ रिस्पेक्ट टू y जब लोगे तो यू विल हैव पहले टर्म का डेरिवेटिव 0, दूसरे का आएगा -16xy, तीसरे का आएगा -8, बाकी 0 क्यों बताता हूँ, ठीक है मैं बता ही देता हूँ आपको. -6z. गुड. डेरिवेटिव इसका लिया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y है ना,
2y into 8x minus 16xy, फिर 8 dy by dy इस माइनस 8, फिर इसका आएगा आपका 6z, राइट, और लास्ट टर्म में तो y नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। देन ये आएगा आपका z के रिस्पेक्ट से, तो इसका इसका और इसका 0 ही आने वाला है, तो ये आएगा 6y माइनस 8z, राइट। कहाँ बोला है? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे मतलब मैं ये सारे वैल्यूज डावा v बाय डावा x यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा, डावा v बाय डावा y सब्स्टिट्यूट करूंगा, डावा v बाय डावा z सब्स्टिट्यूट करूंगा, फिर उसके बाद मैं मुझे e मिल जाएगा, लेकिन कहाँ? ओरिजिन पे। मतलब वापस फिर मैं x y z की वैल्यू 0 0 0 डालने वाला हूँ। मतलब फिर मैं इतना काम क्यों करूँ, मैं सीधा इसको 6 ले लेता हूँ। Why? Because y की वैल्यू 0, तो 6 सर्वाइव करेगा, यहाँ पे 8 सर्वाइव करेगा, यहाँ कुछ भी सर्वाइव नहीं करेगा, राइट, करेक्ट। तो आपको अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है? अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट e bar is equal to at origin obviously equal to minus 6 I cap minus 8 j cap. That's all you are going to get. फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? 6 स्क्वायर, क्योंकि माइनस 6 का स्क्वायर है ना 36, और माइनस 8 का स्क्वायर 64, मतलब 100 का रूट मतलब 10, और फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई, 2 इंटू 10 दैट इज 20 न्यूटन, राइट। ये मेथड 1 थोड़ा शॉर्टकट करके बताया है मैंने। मैं अभी आपको मेथड 2 बताने वाला हूँ ओरल। उसके लिए हमको चाहिए v6x और क्या था 8x y स्क्वायर, और क्या था इसमें 8y एंड प्लस 6yz एंड माइनस 4z स्क्वायर, ऐसा कुछ था, राइट। नाउ दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग मैथमेटिक्स चाहिए। अब देखो ऐसा है, if you have at least idea of derivatives, ओरिजिन पे वही टर्म सरवाइव करेगा जिसमें x और y और z नहीं आएगा। तो जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं, आई डोंट केयर विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएबल, चलो वेरिएबल के साथ मान लो, मैं अगर विथ रिस्पेक्ट टू x लूंगा तो इसमें से सिर्फ वही टर्म आइडेंटिफाई करो जिसका डेरिवेटिव लेने के बाद उसमें x y z नहीं आएगा, 6 एंड 8, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही टर्म ऐसे हैं जिसका डेरिवेटिव लेने के बाद x y या z नहीं आएगा। इसका डेरिवेटिव लूंगा तो 6 आएगा, इसका लूंगा तो 8 आएगा, बाकी सब में समथिंग और द अदर थिंग विल सर्वाइव, या x या y या z, राइट। क्योंकि जब ओरिजिन की बात करोगे तो वो x y z सर्वाइव करने के बाद भी तो 0 0 0 डालने वाले हो। इसका मतलब कांस्टेंट विथ एनी वेरिएबल ऑफ पावर 1, नो मल्टीप्लिकेशन, नो पावर्स अलाउड, राइट, ओनली 2, 6 एंड 8। पर ये वेक्टर फॉर्म था, वेक्टर फॉर्म था ना। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हो? x कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब एक कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस दूसरे कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 6 स्क्वायर और 8 का स्क्वायर का एडिशन का स्क्वायर रूट। मतलब ओरली समझ में आ गया कि ई 10 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स मिलेगा, दैट इज 20 न्यूटन, राइट, करेक्ट। This is how you should be solving now onwards, because we have done a lot of practice of derivatives. A bullet of mass 2 gram is having a charge of 2 microcoulomb. So what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10 meter per second? What you need to know is, ये बुलेट की बात हम बाद में कर लेंगे। You should know how you define electron volt. Electron है at rest and nothing is nearby.
मतलब there is no potential of any kind nearby. Now you keep this electron in an external potential, let us say of V volt या फिर 1 volt. It will start moving, it will start gaining kinetic energy because it is in motion now. That kinetic energy is due to the work done on this electron by this external potential to charge into V. This was work done, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा है, Q into V. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे बुलेट है, बुलेट रेस्ट पे था, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, बुलेट का मास दिया है, उसका चार्ज दिया है, उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस से हम एक्साइट करा रहे हैं फ्रॉम रेस्ट, राइट, और फाइनल स्पीड हो गया 10. तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज नथिंग बट mv स्क्वायर बाय 2q. मास इज 2 ग्राम, 2 into 10 power minus 3 kilogram. V is 10, 10 का स्क्वायर 100, 2 into q, q is 2 micro, 10 power minus 6. कैंसल कैंसल, 1 by 2 is half, मतलब 0.5 into 10 power minus 3 plus 2 is minus 1, और ऊपर ये minus 6 ऊपर आएगा तो प्लस होगा, तो minus 1 plus 6 is 10 power 5. तो ये आ गया 5 into 10 power 4, है ना, मतलब 50 into 10 power 3 वोल्ट, मतलब 50 किलो वोल्ट. ऑप्शन नंबर बी. रेस्ट पे थी बुलेट, बुलेट रेस्ट पे थी और हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया. इट विल नॉट मूव इफ इट डजंट हैव अ चार्ज. लेकिन चार्ज है, चार्ज है तो आपको पता है अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव होगा, राइट. तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं पोलैरिटी चेंज करता हूँ, प्लस माइनस. पहले रेस्ट पे था, नाउ बिकॉज यू आर कीपिंग इट इन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, और क्योंकि इस पर चार्ज है, इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, मतलब इट विल स्टार्ट गेनिंग काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव होने लगा मतलब वेलोसिटी बढ़ने लगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 10 दिया है, राइट, हाफ mv स्क्वायर. लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया? वर्क हैज टू बी डन. व्हाट इज वर्क इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? q into v. Half mv square is q into v, where v is capital V is potential difference. So capital V potential difference is mv square by 2q. मास दिया है, v दिया है 2 और q सब पता है, तो 50 किलो वोल्ट will be आंसर. और दिस इज हाउ यू डिफाइन EV. आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, उसको 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में हमने रख दिया, whatever kinetic energy it will gain will be defined as 1 EV. So E into V, that is 1.6 into 10 power minus 19 joules. This is how you define. Charges plus Q minus Q are placed at points A and B respectively, which are 2L distance apart. मतलब ये L है, ये L है, डायग्राम में वो थोड़ा असिमेट्रिक हो गया, मतलब ये डायपोल है, बेसिकली डायपोल है. ओके, C is the midpoint, बोला ही है हमको. The work done in moving a charge plus Q along CRD. तो प्लस कैपिटल Q चार्ज को आपको along CRD मूव करना है. What will be work done? तो वर्क डन doesn't matter आप कहां से, मतलब आप of course it matters on the final points, बट कौन से रास्ते से ले जा रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज Q into difference in potential, Q into potential at D minus potential at C. क्योंकि हम C से D ले जा रहे थे तो VD minus VC होगा. Potential at point C will be potential due to charge at A plus potential due to charge at B, which is 0. क्यों 0? क्योंकि A पॉइंट पे जो चार्ज है K Q by L है ना, राइट, और B पे क्या है, माइनस है, माइनस K Q by L. जीरो पोटेंशियल. वैसे भी इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जीरो होता है डायपोल के, और सेंटर ऑफ अ डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू या प्लस क्यू माइनस क्यू. सेंटर ऑफ अ डायपोल तो इक्वेटोरियल लाइन पे ही आता है ना, हाँ, तो वो जीरो होता है.
तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली बोला मिड पॉइंट क्या, ठीक है 0, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे है और पोटेंशियल 0 होता है, हमको पता है, खत्म। वीडी, वीडी पे पोटेंशियल आएगा वीए और वीबी की वजह से, के क्यू, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ, देखो क्या है, डी पॉइंट का डिस्टेंस, तो मैं ए डी लिख देता हूं, मतलब नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड, राइट। डी का डिस्टेंस ये 2l है और ये अलग से l है, राइट, गुड, तो ये आएगा 3l, 3l माइनस के क्यू बाय एल, है ना। BD डिस्टेंस, BD डिस्टेंस, ये L अगर है तो इट विल बी दिस, तो 3 1/3 1/3 1/3 माइनस 2/3, राइट, के क्यू बाय एल, करेक्ट। तो इसका मतलब जो वर्क डन की आप बात कर रहे हो, उस वर्क डन में VC तो 0 ही है, तो VC अगर 0 ही है तो फिर that means that work done W is equal to, let me make some space, good, so work done this is Q, that charge I am moving, which charge I am moving, plus Q I am moving, so I will make correction here also because you will get confused otherwise, तो ये भी प्लस कैपिटल Q है क्योंकि हम लोग प्लस कैपिटल Q को ही मूव कर रहे थे, तो प्लस Q VD, बाकी तो VC 0 ही है, तो माइनस 2/3 K is 1/4 pi epsilon 0, right, small q by L, 1 जा 2 जा, right, 6, तो माइनस QQ अपॉन 6 pi epsilon 0 L, ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो अगर डायपोल के सेंटर से मूव हो रहा है किसी और पॉइंट पे, तो VD माइनस 0, क्योंकि एट द सेंटर ऑफ डायपोल पोटेंशियल इज 0, तो सिर्फ फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल देखना, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, दैट्स इट, ऑप्शन नंबर डी, समझा अच्छे से। अगर आपने गलती से भी नेगेटिव साइन छोड़ दिया तो फिर आप ये टेक करोगे, so don't do that because you will get -1 instead of +4, good। 3 charges each plus q placed at the corners of an isosceles triangle ABC of side BC, of sides BC and AC 2a, क्योंकि isosceles triangle में पता है आपको 2 sides are equal, तो BC और AC ये 2a है, D and E are the midpoints of BC and CA, तो यहाँ पे E point midpoint दिखाना चाहिए था, right। The work done in taking a charge plus Q from D to A, D to E, मतलब इस पॉइंट से E पॉइंट तक आपको चार्ज को मूव करना है, what will be work done in this case, तो ये मिड पॉइंट यहीं पे आएगा एक्चुअली, गुड। सो solve this, look here, the thing is the moment they say कि ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का BC और CA साइड इक्वल लेंथ का है, D BC का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है, और क्योंकि सारे के सारे कॉर्नर्स पे चार्जेस सेम है, तो देखो ऐसा है कि D पॉइंट के लिए B जो है मतलब प्लस Q है A डिस्टेंस पे, और ये भी है A डिस्टेंस पे, और ये जो भी डिस्टेंस होगा फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट केयर, लेट अस से सम डिस्टेंस y, सम वैल्यू y। E पॉइंट के लिए भी एक प्लस Q A पे है, एक प्लस Q A पे है, और अपोजिट वर्टेक्स जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये डिस्टेंस भी y आएगा। Potential at D will be potential due to A, due to B, due to C. Potential at E will be due to A, due to B, due to C. दोनों केसेस में चार्जेस तो सेम है, दोनों केसेस में दो डिस्टेंस ए ए है और दो एक एक डिस्टेंस वाई वाई है, राइट, राइट, इट इज बिकॉज चार्जेस आर सेम, राइट, ऑन ऑल थ्री वर्टेक्स। अगर एक को भी मैंने माइनस क्यू कर दिया तो फिर जीरो नहीं आएगा, राइट, एंड इट इज बिकॉज डी और ई मिड पॉइंट है
आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो दो इक्वल लेंथ के साइड है उसका मिड पॉइंट है, मतलब उन डी और ई पॉइंट से तीनों के तीनों वर्टेक्स, मतलब तीनों के तीनों चार्ज दे विल बी मोर और लेस एट द सेम डिस्टेंस। कैसे? क्यू क्यू एट ए ए, वन क्यू एट वाई, ई के लिए भी क्यू क्यू एट ए ए एंड वन क्यू एट वाई, तो पोटेंशियल विल बी सेम। पोटेंशियल विल बी सेम मतलब work done is the charge that you are moving, final minus initial, since the potentials are same, work done is same। आपको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, जिसको नहीं समझा मैं वापस बता रहा हूं। द थिंग इज, since this side AC and this side BC, right, they are same। अभी थोड़ा ट्राइंगल अलग दिखा तो समझ लेना, I don't really, I'm not drawing to the scale, right। B C A, यहाँ पे Q था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे भी Q था। D जो है ये मिड पॉइंट है BC का, C जो है E जो है ये AC का मिड पॉइंट है। D के लिए एक चार्ज प्लस Q A डिस्टेंस पे है, एक चार्ज प्लस Q A डिस्टेंस पे है, और ये जो है ये सम Y डिस्टेंस पे है। E के लिए भी एक Q A डिस्टेंस पे है, एक Q और एक A डिस्टेंस पे है, और एक Q वो Y डिस्टेंस पे है। पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो D और E दोनों के लिए पोटेंशियल सेम होगा, मतलब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, मतलब वर्क डन में आप फाइनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट करोगे तो जीरो ही आएगा वो, राइट। एनीवन हु still wants me to explain further or who wants to derive equation? पक्का? Good. Diagram below shows regions of equipotential, मतलब ये चारों लाइन इक्विपोटेंशियल है ना, राइट। और यहाँ पे भी ये इक्विपोटेंशियल है, these are all equipotential, है ना। The diagrams below show regions of equipotential, right। A positive charge is moved from A to B in each diagram, A से B, A से B, A से B and A से B। Maximum work is required to move Q in figure 3। इसमें मैक्सिमम वर्क होगा ऐसा वो बोल रहे हैं, राइट। They are telling you that maximum work is in this. In all the four cases, the work done is same. Why? Because the charge you are moving is same, and these are equipotential. Potential are same. पहली लाइन का 10, दूसरी का 20, 30, 40। यहाँ पे भी 10, 20, 30, 40। मतलब ये पूरी लाइन जो है ये 10 वोल्ट पे है और ये 40 वोल्ट पे है। What is potential difference? 30. 40 minus 30। ये जो सरफेस है ये पूरा का पूरा सरफेस 10 वोल्ट पे है, ये पूरा का पूरा सरफेस 40 वोल्ट पे है, डिफरेंस इज 30। यहाँ पे भी ये पूरा 10 पे है, ये पूरा 40 पे है, मतलब डिफरेंस इज 30। यहाँ पे भी ये 10 पे है और ये 40 पे है, डिफरेंस इज अगेन 30। तो पोटेंशियल डिफरेंस हर एक केस में 30 है, और जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो भी तो सेम ही है, तो फिर वर्क डन इज सेम इन ऑल केसेस। 2017, सिर्फ डायग्राम्स देख के डरना नहीं, तो सेम। Alright. An electron is moving in circular path under the influence of transverse magnetic field, मतलब perpendicular magnetic field है, of 3.57 into 10 power minus 2 Tesla। If value of E by M ratio, मतलब चार्ज टू मास रेशियो बोलते हैं इसको, is 1.76 into 10 power 11 coulomb per kilogram, the frequency of revolution of electron is here। तो ऐसा है, you have an electron which is moving around circular path, the magnetic field being transverse perpendicular, right। ऐसा magnetic field है और ऐसा है, इसका मतलब ये है कि आपको पता है सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल। तो आपको ये भी पता है कि आप वेक्टर को जहां चाहो वहां ले जा सकते हो इफ यू नॉट चेंजिंग डायरेक्शन। तो मैं अगर वेक्टर को
मतलब टेंजेंशियल दिखा देता हूँ पहले, फिर मैं वेक्टर को यहाँ ले जाता हूँ। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 डिग्री है। इलेक्ट्रॉन इज गोइंग दिस वे, magnetic field is perpendicular or direction is always tangent of velocity, so 90 degree, right? And you should know that force due to magnetic field acting on a moving charge होना चाहिए, क्यों? it is q v bar cross p bar। अगर v 0 तो force 0, वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट पे है, तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये आएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा 90 है, साइन 91 होता है। क्यू वी बी, चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो ई वी बी, और सर्कुलर मोशन में है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो कहां से आएगा? एक ही तो चीज थी, मैग्नेटिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू ई वी बी, वी वी कैंसल, एम वी बाय आर इज ओमेगा equal to EV, omega is 2 pi n EV, so frequency is EB upon 2 pi m। ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। डू वी नो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? यस, राइट। वैसे E by m ही दिया है तो क्यों करना है हमको? E by m दिया है ना, तो why should I be substituting E अलग से m अलग से? E by m is 1.76 10 power 11, B की वैल्यू 3.57 into 10 power minus 2, ये नीचे 2 pi, 2 into pi, right? So solve करो। And how do you solve this roughly? I'll tell you, easy है, rough calculations are pretty simple here, right? 2 pi 1 upon pi is 0.318, या तो वैसा कर लेना, या फिर roughly 3.14, roughly 1, approximately 1 point something greater than 1, 2। अभी this is roughly 2, तो ये roughly 1 है ना। 1.76 by 2, अगर मैं 3.57 by 3.14 को roughly 1 बोल सकता हूँ, यहाँ पे 3.57 3.14 से बड़ा है, इसको मैं roughly 1 बोल सकता हूँ, तो फिर मैं 1.76 by 2 को roughly 1 क्यों नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ, of course, right? तो 10 into 10 power minus 10 power 11 10 power minus 2 10 power 9 बराबर, right? तो फिर ये 1 गीगाहर्ट्ज कैसे आया? व्हाट इज 10 पावर 9 गीगा? तो उसको गीगा बोलते हैं, तो 10 पावर 9 हर्ट्ज, तो उसको गीगा बोलते हैं, तो ये आ गया 1 गीगा हर्ट्ज अप्रोक्सीमेटली। मिलियन इज मेगा 10 पावर 6, बिलियन इज गीगा 10 पावर 9, राइट, राइट। 10 पावर माइनस 10 इज 1 एंगस्ट्रॉम, लेकिन 10 पर -10 मीटर के लिए ही एप्लीकेबल है। गीगा, मेगा, मिलियन, बिलियन ये किसी भी यूनिट के साथ लिख सकते हो। यू कैन राइट गीगा सेकेंड, मतलब 10 पर 9 सेकेंड्स, राइट, बट यू कैन नॉट राइट एंगस्ट्रॉम सेकेंड, वो सिर्फ डिस्टेंस के लिए होता है। 1 पिको 10 पर -12, नैनो 10 पर -9, माइक्रो 10 पर -6, मिली 10 पर -3, राइट। देखा? 10 पावर +1। डिकेड कहां से आया फिर? डिकेड का मतलब क्या होता है? 10 इयर्स, तो 10 पावर 1, 10 पावर 3 इज किलो, 10 पावर 6 मैंने बताया मिलियन या मेगा, 10 पावर 9 मैंने बताया, 10 पावर -15 फर्मी। ओके, ये पता होना चाहिए। An electron falls from rest through a vertical important word है, vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field। अभी upward मतलब you should know upward directed electric field का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव से नेगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रॉन इज फॉलिंग, राइट। The direction of electric
field is now reversed. अभी उल्टा कर दिया. Keeping its magnitude same, a proton is allowed to fall from rest in through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to the time of fall of proton is how much? Is larger, smaller, equal, what? We have solved this question for electron only. Their time of fall, I think, was we were supposed to find or something like that. S equal to ut plus 1/2 at square. u 0 है तो s equal to half at square. मैंने कल बताया था ये t square equal to 2s by a. T is equal to under root of 2s by a. A, acceleration, is force upon mass. तो ऊपर गया मतलब t is proportional to under root of mass. जिसका मास ज्यादा उसका टाइम ऑफ फॉल ज्यादा. तो इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल प्रोटॉन से कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज लाइटर एज कंपेयर टू प्रोटॉन. तो प्रोटॉन का जो टाइम होगा इट इज ग्रेटर. तो ए और डी तो नहीं है. अब क्वेश्चन ये आता है, अच्छा सॉरी किसका पूछा है? द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन. हाँ तो फिर स्मॉलर, राइट. अगर प्रोटॉन का बोला था इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन, फिर सॉल्व करना पड़ता. व्हाई? बिकॉज ऑफ कोर्स mass of electron is less than mass of proton, therefore time of fall of electron is less than time of fall of proton, right? ये फॉर्मूला तो कल हमने किया था. फिर फोर्स के जगह पे हमने Q into E भी लिखा था बाद में. वो तो हमको एग्जैक्ट नंबर चाहिए था. वी डोंट नीड अ नंबर हियर. तो ऑप्शन नंबर ए डन. So we are done with electrostatics. We will start with current electricity in the next lecture.